This is chapter number first. It is one shoot video. In this video, we cover all the topics of chapter number first, class 12. Solid are the chemical substance which are the characterized by the definite shape, volume, rigidity, high density, low compressibility. The constituent particle like atom, molecules, ions are closely packed and held together by the strong interparticle force. जब भी आपको सॉलिड्स के बारे में पूछा उसका डेफिनेट शेप साइज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है तो यू विल से द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल. Regular arrangement of constituent particle have definite shape, size, volume, melting point, freezing point. Types of solids are two types: crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids have the definite shape, size, volume, regular arrangement of constituent particle, melting point, freezing point, and it has the long range arrangement, long order arrangement because it is naturally occur. These are anisotropic. Their the physical properties are different in the different direction. ये पूछा जाता है पेपर में, इसको ध्यान रखेंगे. These are the anisotropic in nature because the physical property are same in all the direction. They have the sharp melting point. They have a certain range of temperature क्योंकि जिनका रेगुलर अरेंजमेंट होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, जबकि एमॉर्फस जो अनरियल होते हैं इनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है. जो क्रिस्टलाइन होते हैं इनको जब भी कट करा जाएगा तो ये शार्प की वेज यानी स्मूथ सरफेस मिलेगी, जबकि एमॉर्फस में साफ मतलब रफ सरफेस आपको मिलेगी, इरेगुलर सरफेस मिलेगी. चलिए नेक्स्ट. Crystalline solids are four types on the basis of bond: covalent bond, molecular crystals, ionic crystals and metallic crystals. ये देखिए ionic crystal, covalent crystals, molecular crystal and metallic bond. Ion crystal formed by the positive and negative ion, covalent crystal formed by the atom, molecular formed by the molecules and metallic crystal formed by the electron clouds surrounding the nucleus. Bonding force: ionic crystal, electrostatic bond, coulombic bond, ionic bond, uh, interaction between the cation and anionic bond, covalent bond, bond sharing bond, and molecular bond. Three types of bond: polar, non-polar, and hydrogen bonding. And last one is metallic bond is a electrostatic bond because atom consists electron in proton, proton in nucleus, and electron are surrounding the atmosphere. They attract the electrons. So that's why metallic bond also known as the electrostatic bond. मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज़्यादा हाई जो होगा कोवलेंट बॉन्ड का, बिकॉज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द टू आर मोर देन टू एटम्स. ओके. और सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. हार्ड क्रिस्टल जो होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल्स ही होंगे, और मेटेलिक क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं. और मेटेलिक क्रिस्टल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपने 9th में पढ़ी: लक्ष्य, डक्टाइल, डक्टिविटी, कंडक्टिविटी. इसके अलावा आयनिक क्रिस्टल्स आर आल्सो कंडक्टर बट इन मोल्टन स्टेट, नॉट इन अ सॉलिड स्टेट. याद रखिएगा, इन अ मोल्टन स्टेट फ्री आयंस आर प्रेजेंट सो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. Okay. Examples: diamond and graphite are covalent crystals, and HCl. Sometimes we have the confusion. HCl is which type crystal? HCl is a molecular polar crystal. याद रखिएगा. अच्छा, ये जो structure determination by the X-ray diffraction is a Bragg equation. जनरली किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम एक्सरे डालते हैं तो उससे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे ब्रेग ने क्वेश्चन में डिफाइन करके डायफ्रैक्शन प्रोसेस निकाला था. ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. म्यू लेमडा इजिकल 2d sin थीटा, ये दिया ना एन लेमडा और म्यू लेमडा इजिकल 2d sin थीटा. दिस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यू हैव टू लर्न बिकॉज समटाइम इट इज आस्क्ड पेपर. चलिए. यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन, the smallest geometrical portion of crystal lattice which can be used as a repetitive unit build up the whole crystal is called the unit cell. The smallest part of the crystal is known as the unit cell and arrangement of the unit cell to form a crystal. इस तरीके से भी लिखते हैं. देखिए यूनिट सेल सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. देयर आर 8 atom and 8 corner and shape is cubical. Face center there are the 14 atom, 8 atom, 8 corner, 6 atom, 8 faces.
Body center, 9 atoms are there. 1 atom at center of body and 8 atoms are at corners. And center there are also 10 atom, 8 atom at corner and 2 atom at opposite faces. अच्छा, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल या एन सेंटर्ड क्रिस्टल। मैं आपको क्रिस्टल बोल रहा हूँ बिकॉज ईच क्रिस्टल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल ऑफ सेम या रिवेलेंट यूनिट सेल। फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल रिवेलेंट द सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर रिवेलेंट द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर रिवेलेंट द बॉडी सेंटर्ड रिवेलेंट सेल। ओके, तो सेल और क्रिस्टल एक ही है क्योंकि यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का स्मॉल पार्ट होता है। कॉर्नर्स पे कभी भी 1/8 सपोर्ट करता है, इसे वीडियोस लेक्चर में देखिए, बहुत अच्छे से समझा है। ये क्विक वीडियो रहेगा। 8 इंटू 1/8 कॉर्नर पे सपोर्ट करेगा, दैट मीन्स टोटल अगर क्रिस्टल में बात करें तो 1 यूनिट होगा। फेस सेंटर 1/8 इंटू 8, कॉर्नर पे तो यूनिट है ही ऑलरेडी, एटम्स प्रेजेंट हो गए। सेंटर पे फेस सेंटर पे 6 एटम्स होते हैं और ईच एटम सपोर्ट 1/2, देन गेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल 4। 8/8 इंटू 1/8 देन वी गेट द 1। और बॉडी सेंटर्ड पे जो है एक फेस बॉडी सेंटर पे 1 होता है तो वो कंप्लीट यूनिट पार्टिसिपेट करते, दैट इज़ 2। एंड सेंटर्ड 8 इंटू 1/8 और 2 इंटू 1/2 देन वी गेट द 2। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड की पेकिंग एफिशिएंसी बराबर होती है। It is approximate 68%. 7 types of unit cell. About the 230 crystals form and 14 lattice are present. Okay, the 7 types of crystals की मैंने आपको एक ट्रिक दी है। C2, CTO, C2O, RHMT स्क्वायर, C2O RHMT स्क्वायर, इस तरीके से दिया है। इसकी बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। साइड और एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंगल्स और जो साइड दिए हैं, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ टू कैलकुलेट लेटाइस यूनिट या लैटिस ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, ब्रेकिंग फ्रैक्शन की अगर बात करें तो इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक देखिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी SCC, पेकिंग एफिशिएंसी 52.4% रहेगी। पेकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आप रखेंगे A स्क्वायर होता है तो A की वैल्यू होता है 2R क्यूब। देन डायरेक्ट यू विल पुट द फार्मूला आंसर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट मीन्स यहाँ पे आपको A की जो वैल्यू होगी, कि A इज़ द एज ऑफ क्यूब, तो D इक्वल होगा A/√2। रेडियस हो गई, आप A को रिप्लेस करेंगे तो √2A/4। पेकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है आपका वही पुट करना है अपने को उसी तरीके से, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4R अपॉन √2 रेडियस क्यूब। देन यू विल गेट द वैल्यू 74%। सिमिलरली बॉडी सेंटर्ड करेंगे, PF 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4R अपॉन √3 R क्यूब, देन वी गेट द 68% ऑफ बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड की पेकिंग 68% होगी बिकॉज सेम नंबर ऑफ यूनिट सेल। Coordination number means it is defined as the number particle immediately adjacent to the particles in the crystal lattice. A simple cubic lattice, the CN is 6, in the body centered 8 and face centered 12. याद रखिएगा, सिंपल यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, बॉडी सेंटर्ड 8 एंड फेस सेंटर्ड 12। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव को जितने ज़्यादा नेगेटिव एम सराउंडिंग होंगे, इस तरह एक नेगेटिव को जितने ज़्यादा पॉजिटिव एम सराउंडिंग होंगे उसे उसके यूनिट सेल कहा जाएगा। ओके, उसे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। मान लीजिए NaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6, यानी एक Na को 6 क्लोरीन सराउंडेड होते हैं। उसी तरह सीजियम क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, 1 सीजियम को 8 क्लोरीन सराउंडेड होते हैं। ओके, इसी तरह SCP और CCP पेकिंग जो होती है, हेक्सागोनल और क्यूबिकल क्लोज पेकिंग, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। ओके, हाई कोऑर्डिनेशन गेन बाय अप्लाइंग द मोर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगी। जबकि टेम्परेचर करने पर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगी। पेकिंग
3 टाइप्स की होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। यहाँ पे 2 डायमेंशन पिकिंग आर 2 टाइप स्क्वायर क्लोज पिकिंग, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, यू विल सी इन द डायग्राम। ओके, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी तो पेकिंग 52.4% रहेगी। हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग देखिए इसकी SCP होगी, दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ 60.4%, है ना। पेकिंग टाइप होगा AB। इसको वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, यू विल ट्राई एंड सी द वीडियोस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। AB टाइप पेकिंग जो होता है, द अल्टरनेट पेकिंग होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, देयर इज 2 डायमेंशन पेकिंग। ओके, सबसे अच्छी पेकिंग FCC मानी जाती है, सबसे कम पेकिंग SCC मानी जाती है। FCC की पेकिंग 74% होती है, जबकि SCC की पेकिंग जो होती है 52.4% होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है हाईएस्ट, और सबसे लोएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जो गैसेस होती है उनकी पेकिंग जो है CCP टाइप की होती है, दैट मीन्स क्यूबिकल क्लोज पेकिंग। हीलियम जो होता है उसकी पेकिंग HCP टाइप की होती है, बल्कि दोनों ही 3D स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही 3 डायमेंशन पेकिंग होती हैं। जब वॉइड्स आर स्पेस और होल्स, जब हम इस एटम्स को अरेंज करते हैं, क्योंकि एटम स्पेरिकल शेप होते हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली 100% टच टुगेदर, सम स्पेस आर वेकेंट एट द टचिंग पॉइंट एट टचिंग स्पीड, that is known as the voids. Sometimes the cation and anions are holes, atoms leave their places, so some places are vacant, that places are known as the hole. Okay, जो खाली प्लेस हो जाता है बचता है उसको हम होल कहते हैं। देखिए यहाँ 3 एटम है, उसके बीच में जो खाली स्पेस देख रहा है 3 एटम, और उसके ऊपर जो डॉट डॉट लगा के दिख रहा है दिस इज़ 4 एटम। जब उनको रखेंगे तो बीच का जो फाक खाली रहेगा उसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। टेट्रा क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज द 4 एटम्स आर यूज्ड। ओके, और एक दूसरे को टच करते हैं, कॉर्नर पे टच करते हैं, बट फिर भी 100% एफिशिएंसी नहीं आती है। दूसरी आर वॉइड्स जो दिया है 0.225 इंटू आर स्पेस, दैट इज़ अ रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इज़ अ रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन। टेट्राहेड्रल का रेशियो 2.24 होता है, ऑक्टाहेड्रल का रेशियो 0.414 होता है। इज अ डबल ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक क्रिस्टल के अंदर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती है, जबकि एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन सकती है, ये याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की 4 थी, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देयर 8 एटम्स आर रिक्वायर्ड, 4 एटम, 3 एटम्स नीचे, 3 एटम ऊपर, देन जो नीचे वाले 3 एटम है उसके नीचे अगेन एक एटम, और जो ऊपर एक एटम है उसके 3 एटम हो उसके ऊपर एक एटम। तो कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द 4 and 4, 4 downward and 4 upward, then final is 8 atoms, but only 3 and 3, middle 3 atoms touching together, so the coordination number is 6. Its radius ratio is a double of tetrahedral, because I have told you the 2 tetrahedral voids are present in one octahedral compound. Okay, चलिए, density of unit cell Z into M upon AQ into N naught. N naught is a fixed value, याद रखिए इसकी वैल्यू D इज इक्वल ZM अपॉन AQ N naught, N naught या Na इज अ रिप्रेजेंट एवोगेड्रो नंबर। चलिए ये रिप्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अगर 0.02 से लेस देन वैल्यू होगी, रेडियस रेशियो होगी, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मोलरी 2-3 आएगा, स्ट्रक्चर लीनियर होगा। एग्जाम्पल दिया है 0.225 से 0.44 के बीच में होगा, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 0.41 टू 0.73 द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एंड 0.7 टू 1 नैनोमीटर अगर हो जाएगा, दैट इज़ 8 कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज क्यूबिकल। याद आपको कौन कौन सा रखना है? सीजियम क्लोराइड, सीजियम आयोडाइड, ये याद रखना है। ZnS, NaCl, ये याद रखेंगे आप, ये पूछा जाता है पेपर में। चलिए आगे, आयनिक क्रिस्टल्स में भी 2 टाइप, AB टाइप, A2, B टाइप और AB 2 टाइप, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलिए आगे देखिए, आयनिक क्रिस्टल्स लाइक NaCl, सीजियम क्लोराइड, ZnS, CF2, N2, है ना, ये याद रखेंगे। NaCl, ऑल द क्रिस्टल्स आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, FCC टाइप क्रिस्टल, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक क्रिस्टल की फिक्स होती है, इसको याद रखिए। NaCl सीजियम क्लोराइड, NaCl 6:6, सीजियम क्लोराइड 8:8, ZnS 4:4, कैल्शियम फ्लोराइड 8:4 एंड Na2O 4:8। याद रखिए जो कैल्शियम फ्लोराइड आपको दिया है तो कैल्शियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, जबकि फ्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी। यानी एरो आपको अगर लगाना है कोऑर्डिनेशन नंबर की है तो क्रॉस में लगाना पड़ेगा। फर्स्ट एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड होगी, सेकंड एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट एटम से बिलोंग करेगी, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। इनपरफेक्शन ऑफ सॉलिड, जब भी किसी क्रिस्टल को जब अरेंज कराया जाता है, उसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर आता है, तो कोई ना कोई एटम या आयंस अगर मिस होता है तो उसके कारण क्रिस्टल में डिफेक्ट जनरेट होता है। इसे स्टिचियोमेट्रिक और नॉन स्टिचियोमेट्रिक में डिफाइन किया गया है। ये डिफेक्ट जो है परमानेंट होते हैं या टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिफेक्ट मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, सेकंड लाइन डिफेक्ट होता है। स्टिचियोमेट्री, नॉन स्टिचियोमेट्री मैंने आपको बताया। पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप्स होते हैं, स्टिचियोमेट्री, नॉन स्टिचियोमेट्री। व्हाट आर द पॉइंट डिफेक्ट? Point defect, when the atom has lost its place in some holes or voids are created. The point defect. Point defect, irregularities of the atoms and ion form. Okay. स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ पर किसी भी एटम की, किसी भी आयंस की, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या साइन में चेंज होता है, केवल अपने स्पेस को हट जाते हैं वहाँ से, अपने स्पेस को वैकेंट करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे होल जनरेट होता है। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट लाते हैं। दे आर 2 टाइप, द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। लुक एट द स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट ड्यू टू द केटायन एंड एनायन, both ions move from the crystal, both ion leave to the crystal. Shortky defect is formed. In the Frankel defect, only cation leave its place and settle inside the crystal. So no change in the shape, no change in shape, size, volume, density. Okay. No change in the coordination number, but in Schottky defect, change in size, volume, change in the coordination number. AGBR, याद रखिएगा, इट हैज़ द बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि AGBR और CL दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, बट क्रिस्टल में से केवल AGBR ही बाहर निकलता है। ओके। द इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज कॉल्ड, जब एक कोई क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल होता है उसके साथ कोई दूसरे क्रिस्टल को रखा जाता है, तो ड्यू टू द रिएक्टिविटी वन केटायन रिमूव द अनदर एनायन, दिस कॉज द डिफेक्ट इज जनरेटेड। फॉरेन एटम की बात कर रहा है, दैट मीन्स कोई दूसरा एटम उसके अंदर एंटर हो गया, उसे फॉरेन एटम कहा जाता है। इसको हमने एक्सप्लेन किया कि जैसे NaCl क्रिस्टल में अगर स्ट्रॉन्शियम के साथ रखा जाए तो स्ट्रॉन्शियम 2 NaCl को रिप्लेस कर देंगे। ओके। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर बात करें, दे आर द 2 टाइप्स ऑफ, देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। The metal effect defect due to the anionic vacancy, like a NaCl, KCl, show the type of defect. Centralized sites are missing and F center is generated. F center is a center where the only electron present by the loss of cation. So the electron is responsible for coloring of compound. Like, okay. Now, metal एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी कीटान जब लॉस करता है ऑक्सीजन को तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, यानी पॉजिटिव मेटल बढ़ती जाएगी, तो इट्स कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे आयरन रस्ट होता है, उसको अगर अपन गर्म करें तो ऑक्सीजन कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा, वी गेट द ऑक्सीजन in form of gas and metal in excess, so we can it is a metal excess defect. Classification of the solid on the basis of the electric conductivity. There are 3 types of solids: conductor, insulator and semiconductor. Learn the range: 10 to power 1 to 10 to power 7, very good conductor. 10 to power minus 10 to power minus 20 should be here. Do not conduct electricity, insulator. And semiconductor, 10 to power minus 4 to 10 to power minus 6. These are the semiconductor. ये जो बैंड होते हैं, जो कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, इनके बीच में जो फॉरवर्डन एनर्जी है उनकी गैप के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। अगर ज़्यादा गैप होगा तो कंडक्टिविटी लो होगी। दे बिहेव्स एज द इंसुलेटर, गैप कम होगा। सेमीकंडक्टर एंड वेरी लेस, सो बिहेव्स एज द गुड कंडक्टर।
नाउ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रेंज दी है, देखिए इसको याद करेंगे। In-stick semiconductor and in-stick semiconductor. Pure semiconductors of 14 group in the periodic table are known as the pure semiconductors, and we are adding the 13 group and 15 group element in the semiconductor. They are known as the extrinsic semiconductor. There are two types of semiconductor: p-type semiconductor and n-type semiconductor. p-type semiconductor formed by the uh, trivalent balances compound added into the 14th group tetravalent balances compound. They form the p-type semiconductor. N-type semiconductor is formed when the 15 group is into the 14 group, means pentavalency compounds elements are added into the 14 elements of 14 groups elements is known as the p-type n-type semiconductor. Okay, these are very important because they are used to form a diode and transistors. Due to this, the conductivity of any device can be increased. And the property of metallic, there are 5 types of the compounds are present: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसको आप अच्छे से करेंगे, ध्यान से देखिए। Dimagnetics, all the electrons are paired, so they have a repel proportion. Paramagnetic, some electrons are paired and some are unpaired, so they have the lateral attraction property toward the magnetic field. Ferromagnetic, all the electrons are unpaired, so they have a great attraction property toward the magnetic field. They are used to form a permanent magnet, they form a strong magnet. Antiferromagnetic, all electrons are unpaired but they are opposite spin, so repel each other and cross each other magnetic field, so there is no attraction, always repulsion is there. Ferrimagnetic, all electrons are unpaired but they have some opposite spin, some are parallel, so they have very little attraction property. So if we arrange the compound in attraction property, the strongest attraction is ferromagnetic, then after less attraction is diamagnetic, then after ferrimagnetic, and last one is ferrimagnetic, last one is diamagnetic, and then after एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर यूज फॉर। फिर से सुनिए, फेरोमैग्नेटिक, देन पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, लास्ट वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर यूज्ड. Okay, the chapter is over.